فی کلامہ المحکم و خطابہ المتقن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صلوات کوئی لبی چوڑی گفتگو نہیں، مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا. مختصر وقت میں نے فقہ جعفریہ خیر البریہ مذہب اہل بیت کا آئینہ دکھانا ہے، کیونکہ فقہ جعفریہ خیر البریہ مذہب اہل بیت کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، ایک قرآن، دوسرا محمد و آل محمد کا فرمان. کائنات میں فخر سے آپ بتا سکتے ہیں جیسے قرآن کائنات کا کوئی مسلمان نماز میں نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اگر ہمارے مرشد ہادی رہبر محمد و آل محمد پر ہر مسلمان نماز میں درود نہ پڑھے اس کی بھی نماز نہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری سلامت رہے. اس سے بڑا فخر نہیں ہے، اس سے بڑا فخر ہمارے لیے نہیں ہے. کائنات میں بننے 73 ہیں لیکن جانا جنت میں ایک ہے. 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت. کیونکہ اپنے بزرگوں کی یاد تازہ رکھتے ہوئے ذمہ داری بلوچ صاحب سمجھتا ہوں، اور وہ ذمہ داری نبھاتے ہوئے کیونکہ کندھوں پہ تھوڑا سا وزن ہے طالب علم ہوں، لیکن بتانا چاہتا ہوں 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت. پہلا النظر الی المصحف عبادت، قرآن کا دیکھنا عبادت. دوسرا النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت. تیسرا النظر الی الوالدین عبادت، اماں اور ابے کا چہرہ تکنا بھی عبادت. اور اس پہ ہاتھ ضرور اٹھانا، یار معذور نہ ہو، مغرور نہ ہو، مجبور نہ ہو بندہ جو نہ اٹھائے، سادات کی نگری ہو. النظر الی وجہ علی عبادت، میرے مرشد علی کا چہرہ تکنا بھی عبادت. سلامت رہے حیدری. مینیجر کے ہاتھ بلند ہو سکتے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے قدیری نعرہ سنیں. مومن منافق کی پہچان حیدری. گھبرا کے کوئی بندہ نہ بولے کیونکہ بغض علی ہے جہنم. گھبرا کے نام کیوں لے یار؟ ولایت علی کا نشہ ہو اور بندہ وہ بولے نا، پھر پتہ نہیں وہ کس جہنا مٹی کا بنا ہوا ہے. ذکر ابو تراب کا ہو، بیٹھا تراب یار کائنات میں پھر گھبرا کے نہیں. 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت. اہل سنت کتاب ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ. کیا ایک قرآن کا دیکھنا عبادت، ایک کتاب کا دیکھنا قرآن اللہ کی کتاب کا دیکھنا عبادت. دوسرا کعبے کا دیکھنا عبادت. تیسرا والدین کو تکنا عبادت. چوتھا میرے مرشد علی کو دیکھنا عبادت. لیکن کاشف نبوی صاحب سے لے کر آخری بندے تک ہر کسی کے لیے عبادت نہیں. میرے مرشد علی کو ہندو بھی دیکھتے تھے، کافر بھی قرآن پہ ریسرچ کر چکے ہیں، کعبے کو بھی بندے تک رہے ہیں غیر مسلم، لیکن ہر کسی کے لیے عبادت نہیں. عبادت کس کے لیے؟ وہی فقہ تھوڑا سا بولے جس ٹولے کی میں وکالت کر رہا ہوں. کعبے کو بیت اللہ سمجھ کے دیکھے، قرآن کو کلام اللہ سمجھ کے دیکھے، اپنے والدین کو عبادت اللہ سمجھ کے دیکھے، اور میرے پیر علی کو علی ولی اللہ پڑھ کے دیکھے. سلامت رہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. اللہ اللہ ان میرے بچوں کی جو نا جوانی میں ان کو جو نا لمبی زندگی عطا فرمائے، ماں باپ کے حصے کے ہوں، ان کے ماں باپ کے کلیجے ٹھنڈے ہوں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر نماز واجب نہیں. ان کو پتہ ہے نماز واجب نہیں، روزہ واجب نہیں، لیکن نعت علی پڑھ کر ہماری بہنوں نے ان کو دودھ پلایا ہوگا، اس لیے انہیں پتہ ہے یہ آج بھی علی کی ولایت واجب ہے، کل بھی ولایت واجب ہے، یہ نماز میں بھی واجب. جاگتا بندہ بولے حیدری. اب عبادت سمجھ کے جو بندہ جاگ رہا ہے، کیا علی کا چہرہ تکنا عبادت. بندے کاشف شاہ جی مجھے کہتے ہیں سادات کی نگری ہے، آپ سے بھی پیر صاحبان سے لینے آتے ہوئے تعبیر، پریشانیاں کم نہیں ہوتی. ہمارے
हमारी बीमारियां नहीं टलती, हमारे घर में कर्जे बहुत ज्यादा हैं। आओ मैं अमल बताता हूं। जो बंदा चाहता है घर में कुरान पढ़े, जिसका देखना इबादत है, उसको पढ़ना कितनी बड़ी इबादत होगा। पढ़ेगा तो पता चलेगा। इन्नमा युरीदुल्लाह किसके लिए, उसको पढ़ेगा तो पता चलेगा। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह किसके लिए आया, उसे पता चलेगा। पढ़ेगा तो पता होगा। वयुतइमूना तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। और एक टोला तो है जिसको मौलवी हो या बड़ा तालिब इल्म हो, जाकिर हो या कोई बड़ा जो है ना मुफ्ती हो, वो कहता है मेरा बच्चा हो तो कुरान पढ़े, मेरा बड़ा हो तो कुरान पढ़े। बाकी तो सारे रोक रहे हैं। कुरान को अकेला ना पढ़ा करो जब तक तुम्हारे पास उस्ताद ना हो। मैं कहता हूं आप पहले कहते थे कुरान काफी है, अब कहते हो उस्ताद। यार ये व्हाट्सएप पे बातें चल रही है, कुरान अकेले में ना पढ़ा करो। कभी तुम्हें अहले बैत समझ में यार डराते। हम कहते बच्चों को कुरान पढ़ो। अच्छा, जिस घर में कम अज कम मेरे पहले मोहम्मद से लेकर आखिरी मोहम्मद तक 50 आयतें तिलावत हो, उस घर से नहुसत टल जाती। घर में कुरान की तिलावत खुद ना करो। और कसूर पीरों का है नहीं, हाथी तेरे बेऐब हैं, तेरे गुलाम बेऐब अब बनने में देर। जिस कुरान का देखना इबादत, उसका पढ़ना, जब पढ़ेगा जमानो तो फिर पता चलेगा। इसका तर्जमा भी जरूरी, क्योंकि बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक जिस घर का कसीदा है, पूरा कुरान पढ़ेगा तो पता चलेगा वो घर का। सलामत रहे, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। अल्लाह ताला 100 साल से ज्यादा जिंदगी दे, क्योंकि ये बंदा जहां भी मिला ना वही जो ना जीनत मजलिस बन के बैठता है। जो बंदे बिल्कुल सिर झुकाए हुए ना, वो बंदे थोड़ा सा मेरे साथ आंख मिलाए। कुरान अगर बंदा चाहता है घर में बरकत हो तो मेरे साथ आंख मिलाए। सुबह की नमाज के बाद अगर बंदा सूरह यासीन तिलावत करे, क्योंकि मेरे हाथी बेऐब है, उन्होंने बताया अगर जोहर के बाद सूरह नबा तिलावत करे, असर के बाद सूरह असर तिलावत करे, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया तिलावत करे, और ईशा के बाद काशिफ नकवी साहब सूरह मुल्क तिलावत करे, उस घर से ना रिज्क घटेगा, ना इज्जत घटेगी, ना बरकत। जाके मेरे बच्चों के साथ चलो हैदरी। कुरान की तिलावत कर। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। आबाद शाद रहे, आबाद शाद रहे। चले, पता चल गया नारे वाला बंदा भी बैठा है और रुबाई वाला बंदा भी पकड़ा गया। जाके सुनना है आपने। अच्छा, एक जुमला मैं भी कह दूं। आदम से लेकर मेरे नबी सैयदुल अंबिया तक किसी का नाम अली हो या उसके किसी उम्मती का नाम अली हो तो तू दिखा, वरना अलीयुल अजीम ने ये नाम छुपा के रखा है मुकस्सरों के मुंह पे तमाचा मारने के लिए। मैं अली नाम दूंगा उसे जो दिल से कबूल कर। यार दिल में अली ना हो फिर फायदा। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। खुदा कहता है घबरा के अली का नाम ना लिया करो, जिसमें कुरान का जैसे इन्होंने बताया है बिस्मिल्लाह की बे से वन्नास तक। अगर अली देखना हो तो कुरान जरूर पढ़ो। वो कुरान पढ़ते वही है जो अली वाले हों, क्योंकि कुरान पढ़ने से अली समझ आएगा। पूरा कुरान ना पढ़ेगा तो फिर जिद में रहेगा कहां पढ़ना है कहां नहीं। नहीं, जिसे समझ आ जाए को अली, वो मेरे साथ आंख मिलाए। कुरान का पढ़ना इबादत, कुरान का पढ़ना इबादत, देखना इबादत, समझना उससे बड़ी इबादत।
खुदा जानता है, जो बंदा कुरान को सही पढ़ लेना उसे फिर पता चलता है, मुकम्मल नतीजे पे पहुंचता है कि ये कुरान कसीदा किस घर का बना। पूरे कुरान में एक कम 90 दफा अल्लाह ने ऐलान करके फरमाया, यार जिसका चेहरा देखना इबादत है, जिसका चेहरा देखना इबादत हो। ठंडे दिमाग से सोचो, तसल्ली से, मेरे साउंड वाले से लेके आखिरी बंदे तक मुझे ये बताएं, आदम से लेकर मेरे मोहम्मद तक किसी का चेहरा देखना इबादत है? फिर मुझे ये बताओ, पूछने की जरूरत है, या अंबिया का चेहरा देखना इबादत नहीं है? मेरे मुश्किल कुशा का चेहरा देखना इबादत। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। मैंने एक दो बंदों के अभी तक हाथ नहीं खुले, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। क्योंकि यार एक बंदे के हाथ मैंने जो है ना उसके बाप के जनाजे पे खुलवा, वो कहता है कि मैंने कहा हाथ बाबा के बांधो, कहता है कि मरे हुए के किसी ने बांधे, मैं बांधू। मैंने कहा क्यों, किसके पास जा रहा है? कहता है अल्लाह के पास। मैंने कहा यहाँ जाता था अल्लाह के पास? कहता है यहाँ 5 दफा जाता था। मैंने कहा फिर शियों से धोखा नहीं है, अल्लाह से धोखा है। जब 5 दफा अल्लाह को मिलने जाता था दूसरे तरीके से, जब पक्का जा रहा है फिर जो जाग के पास बोल रहा है वही बंदा बोले। इस्लाम दीन एक, फिका 5, 16 इमाम। मुझे ये बताओ, इनमें से 12 कहते हैं हाथ छोड़, इन 4 के हाथ मिलते नहीं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, एक कहते हैं खोल। जब मैंने इनसे पूछा आप कहां के हो, उसने कहा मैं कूफे का। दूसरा आप कहां के हो, कहते बसरे का। ये मदीने से कई हजार मील दूर। लेकिन जिसने हाथ खोले थे इसका नाम है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। मैंने कहा आप कहां के हो, कहते मैं तो हूं भी पैदाइशी मदीने का, सारी जिंदगी देखा भी मैंने आले मोहम्मद को है। उन्होंने हाथ खोले बांधे, खुद खाली जगह पर करे, दोनों हाथ बुलंद करके जिसका हाथ अपना हैदरी। फिर मैं कहता हूं इन 16 में से 12 हमारे थे जिन्होंने हाथ खोले, इन 4 में से एक था। मैंने कहा तू अच्छा नहीं लगता, तू मेरे 12 के साथ था, इधर हो गए 13, इधर बच गए 3। तो फिर मुझे कहने दो, जो हाथ खोल के या बांध के नमाजों का पढ़ता नहीं, ना वो 3 में रहता है ना वो 13 में। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। मैंने जिसने हाथ खोलने जैसे आया था वैसे जाना है, इबादत भी वैसे करनी है। प्रोफेसर वसीम नकवी के साथ जिद नहीं बनानी। दोनों हाथ बुलंद करके गदीरी नारा हैदरी। 16। चलो शुक्र है यार, शुक्र है, बंदा जान पे साइड दो। हैदरी। यार मैंने काशिफ नबी साहब चौक में भी कहा था, इमाम 16, 4 मेरे दोस्तों के 12, मेरे हर बंदा तैयार। जन्नत क्यों, तेरी फूफी का घर है, नाराज कोई ना हो। सैयदू सबका साझा पीर, नाराज ना हुई साउंड वाला। हाँ तेरी गल पक्की हो गई है काशिफ नबी ना। क्या मालकी जन्नत जाना है, हमली जन्नत, शाफई जन्नत, हनफी जन्नत, मालकी जन्नत, हमली जन्नत। मैं कहता हूं अपनी मस्जिद वाला कुरान रख मेरे सर पे। अगर किसी एक इमाम का जन्नत में मरला एक हो तो तू दिखा, अगर पूरी जन्नत के मालिक हसन हुसैन हो तो लड़ना छुप है। जो जाजिर करा है बंदा वही बोले। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। नहीं, अल्लाह ने ऐलान करके फरमाया, जअलनाहुम आइम्मा यदऊना इलन नार। हमने इमाम बनाए जो जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। वो भी इमाम है। पहले सूरत में झूठे पीर, झूठे मुरीदों पे तबर्रा, झूठे मुरीद झूठे पीरों पे। यार कुरान कहां छुपाओगे, इसलिए तो मैं कहता हूं कुरान पढ़ा करो। कुरान में माशर के मैदान में झूठे पीर, झूठे मुरीदों पे
और झूठे मुरीद झूठे पीरों में वो जो है ना तबर्रा कर रहे होंगे, उस वक्त हमें बताते तो सही। अब हम आपको लाइन में लगाना दे। ओए होए पीरो बड़ा जड़े लाइन च मंगण वाले ना होण, लाइन च दे वंडण वाले होण। पीर भावे एक बड़ा साडी जिद च न बन। क्यों पीर एक बना? मूसा एक, मानने वाली कौमें 12, मानने वाली कौमें 12। मूसा को इन्होंने सामने कहा हम अलग-अलग रास्ते से जाएंगे। चट्ठों ने कहा अलहदा, चीमे अलहदा, खान अलहदा, मलिक अलहदा, महर अलहदा। अब मौका ऐसा था, हजरत मूसा को फैसला करना पड़ा। यहां जिद नहीं बनानी, इन्होंने सच्चा मुझे माना है तो मेरे पीछे आए हुए, अब मैं भी इनकी मानता हूं। 12 रास्ते हजरत मूसा ने बनाए, ये पार, क्योंकि पीर जो सच्चा था, फिरौन के पीछे भी 12, कौमें भी वही, लेकिन झूठा पीर था ये गर्क। फिर हमारे साथ जिद ना बनाओ, एक बनाओ, सच्चा बनाओ। वो 12 कौमों को पार पहुंचा सकता है, और जिनका एक सच्चा हो वो 12 कौमों को पार पहुंचा सकता है। जिनके 12 सच्चे हो वो एक कौम को सलामत रहे। दोनों हाथ बुलंद करके जिनके हाथ अपने हैदरी कायनात में परेशान होके नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबे कलमा लोगो, कलमा तो पढ़ लिया। मौलवी ने कह दिया मन काना ला इलाहा इल्लल्लाह फदखला फिल जन्ना, फकत जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा। ये सारी पेट की बातें हैं। खुदा गवाह जन्नत में अकेला कलमा पढ़ने से बंदा नहीं जाता, क्योंकि एक कम 90 दफा काशिफ नकवी पूरे कुरान में अल्लाह ने कहा। कहीं कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सलात, कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ना काफी नहीं, तुम्हें नमाज कायम करनी पड़ेगी। पता चल गया कलमा पढ़ना और बात है, नमाज पढ़ना और बात है। कहीं अल्लाह ने ऐलान किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाजों को नीचा रखो। पता चल गया कुछ आवाजें थी जो नबी से ऊंची। ना 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 जानता बंदा बोले हैदरी, चलो हैदरी मेरे छोटे बच्चे ने। और यार परेशान होके नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, अल्लाह ने कहा मैं खुद भी पढ़ता हूँ उस घर पे दरूद, और मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो। बंदे क्या कह रहे हैं काशिफ नकवी साहब, हम भी दरूद में शामिल हैं, हम भी दरूद में शामिल हैं। मैंने कहा शुक्र है यार, एक टोला जनती है जो कहते हैं हम दरूद में शामिल नहीं है, बाकी सब कह रहे हैं हम दरूद में शामिल हैं। एक टोला है। फिर मैंने कहा हमें मुखातिब करके अल्लाह ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, तुम एक टोला जन्नत में जाने वालों, मैं भी दरूद पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं। जब सारे दरूद में शामिल है तो वो टोला बाकी बच गया। अल्लाह ने कहा तुम भी दरूद पढ़ो। अगर सारे दरूद पढ़े जन्नत में जाते। हर मसलक पढ़ रहे अपनी नमाज में, लेकिन इसको मुश्किल भी उठाना पड़ती है। साथ अल्लाह ने कहा सल्लिमू तस्लीमा, जिन पे दरूद पढ़ते हो उनको मानो भी ऐसे जैसे मानने का हक है। हर बंदा नहीं, हर बंदा नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। वो बातें जो है ना, कलमा पढ़ लिया, अकेला कलमा पढ़ना काफी नहीं है। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, एक दफा नहीं, एक ही आयत, 2 मरतबा सैयद। अल्लाह ने कहा किसके लिए कहा? देवबंदियों के लिए नहीं, बरेलवियों के लिए नहीं, जिनके लिए कहा उस वक्त नबी के सामने मौजूद कुरान का ऐलान क्या है? लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कलमा तो तुमने पढ़ लिया, वो बातें क्यों करते हो जो यहाँ और है वहाँ। अल्लाह करे चलो नौजवानों ने हाथ उठाया, यार बुजुर्ग ना भी उठाए, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब मैं अपने पॉइंट की तरफ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, कलमा पढ़ लिया, मुत्तकी बन जाओ। हर बंदे ने मुसल्ले उठाने शुरू कर दिए, मुत्तकी बनूंगा।
नो, आप मुत्तकी नहीं बन सकते, क्योंकि मुत्तकी बनने के लिए सींग नहीं लगाने पड़ते। थोड़ा सा मुश्किल में पढ़ना पड़ता है। जब मुश्किल में पढ़ोगे तो फिर मुश्किल कुशा ना 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 ना, बंदे क्या करें, बंदे का शब्द विजा क्या करें। हम नमाजें पढ़ेंगे क्योंकि मुत्तकी बनेंगे, हम ज्यादा लंबे सजदे करेंगे, हम मुत्तकी बनेंगे, लंबे रकू करेंगे, हम मुत्तकी बनेंगे, हमारी जमातें ज्यादा होगी, हम मुत्तकी बनेंगे, सूबे से सूबे में सफर करेंगे, हम मुत्तकी बनेंगे, कंधों पे वजन उठाएंगे, हम मुत्तकी बनेंगे, ज्यादा ज़कातें देंगे, हम मुत्तकी बनेंगे, ज्यादा हज करके अलहाज बनेंगे तो हम मुत्तकी बनेंगे। और रखो मेरे सर पे अपनी मस्जिद वाला कुरान, तो मुत्तकी नहीं बन सकते, क्योंकि नमाजें पढ़ने से बंदा मुत्तकी मुकम्मल नहीं बनता, रोजे रखने से मुकम्मल मुत्तकी नहीं बनता, ज्यादा हज करने से मुकम्मल मुत्तकी नहीं बनता, ज्यादा जहना खराब चलाने से बंदा मुकम्मल मुत्तकी नहीं बनता। यार तुम्हारी सहमतें तमाम न करो, मुझसे पूछो तो सही, सैयद आलिम के बेटे हो, पापा तुम्हारे फाजिले लखनऊ इतने बड़े आलिम थे, 7,000 किताबों के मालिक, जिसे आपको जिन्होंने वारिस बनाया अपनी किताबों का। मैं कहता हूं फिर बताओ तो सही, मुत्तकी कैसे बनता है। अब कोई हाथ पीछे न रहे, मेरे जो है ना नबियों के सुल्तान ने फरमाया, कहते हैं हर बंदा मुत्तकी नहीं बनता, मुत्तकी फकत वो बनता है जिसका इमाम इमामुल मुत्तकीन हो। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, सलामत रहे, आबाद और शाद रहे। इमाम वो जो सदाकत पसंद रखता हो, वाह वाह, इमाम वो जो सदाकत पसंद रखता हो, ज़बान रज़ा इलाही में बंद रखता हो, ठीक है, मिटा सकेगी हस्ती यजीदियत कहा, शहीदों के भी जो सर बुलंद रखता हो। सुभान अल्लाह, सुभान। दोनों हाथ बुलंद करके गदीरी मोमिन मुनाफिक की पहचान नारा हैदरी। अल्लाह सलामत रखे मेरे मुर्शिद याकूब शाह साहब को, जिन्होंने इतने दोस्तों के चेहरों की जियारत कराई। क्या इमाम और मुत्तकीन, अब अल्लाह जानता है ये नेट पे खड़ा है, तकरीबन 36 उलमा, अहले देवबंद, मौलाना इसरा, कब्र की जीनत, हमने कब्र में जाना है। उससे पूछा गया, मौलाना तारिक जमील देवबंदी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा देवबंदी, सैयद जियाउल्लाह बुखारी अहले हदीस, मोहम्मद इसाक सल्फी अहले हदीस, मुफ्ती हनीफ कुरैशी, मैं जो नाम ले रहा हूं इसको नोट कर दे आओ, इनको सुना करो, मुफ्ती फजल हमदर्द, मोहम्मद यासीन कादरी, पीर मुजफ्फर अली शाह कराची फखरे बरेलवियत, और बहुत बड़ी हस्ती का नाम आजकल मेरे जो ना दिल में सबसे ज्यादा मकाम है, प्रोफेसर सदाकत अली फरीदी। जब इनसे सब लोगों ने, मीडिया वाले ने पूछा इमामुल मुत्तकीन कौन हो सकता है, इन 36 उलमा ने तमाम मसाले के कहते वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा की खुली हुई जबान ने सिर्फ एक हस्ती को कहा, या अली अंता इमामुल मुत्तकीन। सलामत रहे, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे, सेहत और सलामती अता फरमाए। जो बंदा ज़ीनत मजलिस बन के बैठता है उनके चेहरे रोशन हमेशा रहते हैं। अल्लाह करे किसी परेशानी में ना आए, अब खुशियों के तुझे हमेशा जो है खुशियां नसीब हो। क्या क्या इमामुल मुत्तकीन, एक गुस्से वाला बंदा मीडिया में खड़ा था, कहते क्यों इमामुल मुत्तकीन अली के अलावा और नहीं बन सकता। उसने कहा बंदे का पुत्र बन। मीडिया वाला कोई सख्त था, उसने कहा बंदे का पुत्र बन। अल इमामुल मुत्तकीन कहलवाना फकत उसे जचता है जिसके 2 बेटे जन्नत के सरदार। सलामत रहे, जवान जवान बोला करो, मेरे बच्चे की ताकत बन के दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। अल्लाह सलामत रखे। यार तेरे आने से 2 बच्चे चुप हो गए, तेरे आने में 2 बच्चे नारे लगवा रहे थे, चुप हो गए। किसी ने सूखा है आपको? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह,
آقا اٹھاؤ حیدری زندہ باد. سارے بولو پتہ چلے یار. یزیدیت مرد آباد آباد دشمنوں پر لعنت. بے شمار. جعلناہم ائمہ. اللہ اعلان کرے قرآن میں جہنم والے امام بھی میں نے بنائے. کوئی لڑ سکتا ہے جا کر؟ یدعون الی النار یوم القیامہ لا ینصرون. قیامت کے دن پتہ چلے گا جھوٹے امام جن کا جا کے پردہ کھلے گا. یا پھر ڈھونڈتے کیوں نہیں؟ کپاس کا بیج لینا ہو, گندم کا لینا ہو تو بندے پوچھتے ہیں کون سا لے. کوئی کہتا ہے 46 نم 70 ایکڑ آندھی ہے دی ایوریج. پوچھتے ہیں نا ایک دوسرے تو وہ کہتے ہیں نا میں انقلاب لینا. وہ انقلاب دی ایوریج اچھی ہے. بیج دنیا دے وچ اگر تینوں ضرورت ہون انہاں دا پوچھدا ہے تے دین لین واسطے نہیں پوچھدا بھی دین لوا کے نہ دو. جنہاں تے دار آلا سمجھدا ہے کہ جنہاں نو کھا ایتے ہن انگریز بھی ریسرچ کر گئے نے. دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے بچے دی طاقت بن گئے. حیدری آباد و شاد رہے. خدا کا وعدہ شہنشاہ نقوی سے کسی نے پوچھا ہے آپ نے امامہ پہنا شیعہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں شیعہ ہوں. کہتا ہے یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ آپ نے دین گھر والوں سے لیا ہے. گھر والوں سے. یہی تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. گھر والوں کو ماننے والے اور ہیں, در والوں سے منتیں کرنے والے اور ہیں. یار گھبرا کے نہ لیا کرو کیونکہ کائنات میں گھبرا کے نہیں. ہماری توحید علیحدہ. کائنات میں کوئی ہمارے اوپر کرتا رہے الزام لگاتا رہے ہم کافر صحیح لیکن ہماری توحید علیحدہ. ہماری توحید وہ نہیں جس میں اللہ کرسی پہ بیٹھے اور کاشف نظری کرسی چرچرائے. اللہ جہنم میں اپنی ٹانگ ڈالے اور اس کے بعد جہنم ٹھنڈی ہو. ہماری توحید وہ ہے جہاں اللہ چودہ کو بنا کے دنیا میں بھیج کے کہتا ہے انہیں دیکھتے جاؤ مجھے پہچانتے. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری آباد و شاد رہیں. ہماری رسالت علیحدہ. ہماری رسالت وہ نہیں جس میں بڑا بھائی ہو رسول. ہماری رسالت وہ نہیں جس میں یاریاں لگانے والا رسول ہو. ہماری رسالت وہ نہیں جس میں رسول ڈھولن ہو, جس میں رسول پنل ہو. لیکن ہماری رسالت وہ ہے جس میں ماتھے پہ اگر پسینہ آئے میرے نبی کو تو انبیاء خلق ہوتے ہیں. اگر اسے چہرے پہ آئے تو اس سے جو ہے نا فرشتے خلق ہوتے ہیں. اگر سینے پہ آئے تو لوح قلم کرسی بنتی ہے. اگر ہاتھ پہ پسینہ میرے رسول کو آئے اس سے آسمان کھڑا ہوتا ہے. اگر اسے زمین پہ بنانی ہو اور پسینہ پاؤں پہ آئے تو زمین بچتی ہے. چپ لوگوں کو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے چپ لوگوں کو دعوت فکر نہ دے دوں. اگر کائنات میں لوح بنی ہے تو محمد کا پسینہ. اگر قلم بنا ہے تو محمد کا پسینہ. اگر کرسی بنی ہے تو محمد کا پسینہ. اگر آسمان کھڑا ہے تو محمد کا پسینہ. اگر زمین بچھی ہے تو محمد کا پسینہ. اگر حور بنی ہے تو محمد کا پسینہ. اگر جبرائیل بنا ہے تو محمد کا پسینہ. اگر اسرافیل بنا ہے تو محمد کا پسینہ. اگر اسرائیل بنا ہے تو محمد کا پسینہ. اگر اسرافیل بنا ہے تو محمد کا پسینہ. اگر سلسائیل بنا ہے تو محمد کا پسینہ. اگر ترتائیل بنا ہے تو محمد کا پسینہ. اگر میکائیل بنا ہے تو محمد کا پسینہ. اگر اوتم بنا ہے تو محمد کا پسینہ. اگر نوح بنا ہے تو محمد کا پسینہ. اگر یحییٰ بنا ہے تو محمد کا پسینہ. اگر زکریا بنا ہے تو محمد کا پسینہ. اگر موسیٰ بنا ہے تو محمد کا پسینہ. یہ اہل سنت کی کتاب قصص الانبیاء میں لکھا ہوا ہے. اگر یحییٰ بنا ہے تو محمد کا پسینہ. اگر عیسیٰ بنا ہے تو محمد کا پسینہ. اگر چوک میں میرا بچہ جا کے کہہ دے عیسیٰ نبی زندہ نہیں عیسیٰ نبی تو مردہ ہے, کہہ کے ہم 73 مسلک لکھے ہوئے ہیں چوتھے آسمان پہ عیسیٰ نبی زندہ ہے, تو پھر عقل میں حجرے میں جا کے عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتا. جس کا پسینہ چوتھے آسمان میں زندہ موجود ہے اس کا خون کیسے مردہ. جاگتا بندہ بولے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. آباد و
شاد رہیں. ہمارا دین اسلام عام نہیں, ہمارا دین اسلام وہ نہیں جس میں ابو لہب ہو, ہمارا دین اسلام وہ نہیں جس میں ابو جہل ہو, ہمارا دین اسلام وہ نہیں جس میں ابو سفیان ہو, ہمارا دین اسلام وہ نہیں جس میں یزید ہو, ہمارا دین اسلام وہ نہیں جس میں مروان بن حکم ہو, ہمارا دین اسلام وہ نہیں جس میں مامون اور رشید ہو, ہمارا دین اسلام کاشف نگری وہ نہیں جس میں ہارون اور رشید ہو, ہمارا دین اسلام وہ نہیں جس میں عبد الملک بن مروان ہو, ہمارا دین اسلام وہ نہیں جس میں طلحہ بن عبد الملک ہو, ہمارا دین اسلام وہ نہیں جس میں سلمان بن عبد الملک ہو, ہمارا دین اسلام وہ نہیں جس میں یزید بن عبد الملک ہو, ہمارا دین اسلام وہ نہیں جس میں معتصم باللہ ہو, ہمارا دین اسلام وہ نہیں جس میں متوکل عباسی ہو, ہمارا دین اسلام وہ نہیں جس میں منصور دوانکی ہو, ہمارا دین اسلام وہ نہیں جس میں معتز باللہ ہو, ہمارا دین اسلام ابو طالب کی بصیرت کا نانا جاگنا بندہ بولے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. ہمارا دین اسلام ابو طالب کی بصیرت کا نام ہے, ہمارا دین اسلام خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کا نام ہے, ہمارا دین اسلام محمد مصطفیٰ کی رسالت کا نام ہے, ہمارا دین اسلام بہنک علی المرتضیٰ کی شجاعت کا نام ہے, ہمارا دین اسلام سید زہرا کی عصمت کا نام ہے, ہمارا دین اسلام حسن مجتبیٰ کے تدبر کا نام ہے, ہمارا دین اسلام مولا حسین کی شہادت کا نام ہے. اور پھر بار بار مجھے کہنے دو, جو پاک گھرانے کو چمتا جائے گا وہ صاحب رحمت بنتا جائے گا, جو ان کی دشمنوں کی طرف پلٹتا جائے گا وہ حقدار اللہ. ہاتھ بلند کرنا بچے کی طاقت بن گئے حیدری. اللہ سلامت رکھے میرے ان بچوں کو. کیا امام المتقین, آخری جملہ کائنات میں فخر سے بتایا کرو, اسے کہلوانا جچتا ہے, پیر شک کر کے نہ بڑا پتہ ہووے پیر او ہون. اللہ قرآن جگہ جعلناہم آئمہ, جنت والے پیر بھی امام میں نے بنائے. اچھا ان کی خوبیاں میرے اللہ بندے ایک تو چپ ہے, ان کی خوبیاں یامرون بامرنا یہدون بامرنا, ہمارے امر کے بغیر ہدایت نہیں دیتے, اور ہدایت ہی سب کو نہیں دیتے, جو ہدایت لیتے ہیں انہیں ہدایت دیتے ہیں. دوسرا اوحینا الیہم فعل الخیرات, اور جو بھی ہم بات وحی کے ذریعے کرتے ہیں وہی آگے پہنچاتے ہیں. اقامت صلاۃ, نماز انہی کی قائم ہے. اطاعت زکات, زکات بھی وہی دے سکتے ہیں. وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور میرے جنت والے امام شہید ہوں گے تو سجدے میں, کیونکہ وہ عبادت گزاروں میں سے. یار بندے پوچھتے ہیں نہیں علی کے بارے میں بتاؤ, علی کی وجہ سے تو شیعوں کی پہچان ہے, ان کے بارے میں پوچھو نہیں. یہ مسئلہ نہیں کہ توضیح المسائل سے پوچھیں, یہ مسئلے کا حل ہے. علی کے ایک دفعہ مجمع میں نام لے کے بندوں کے چہرے پڑھا کر, یہ تو دوسرے خلیفے نے مان لیا, جو علی کا شیعہ ہے وہ کیوں انکار کر. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. سلامت رہے, آباد و شاد رہے. امام المتقین جملے دو, لیکن فخر سے میرے بچے جا کے اپنے سکولوں میں بتانا, ہر بندے کو ہم امام المتقین نہیں کہتے, کسی کو کہلوانا جچتا نہیں, کیونکہ امام المتقین وہی بن سکتا ہے جس کو نبی کی زبان نے صحابہ کے مجمع میں کہا ہو. انہوں نے تو ووٹوں سے بنائے ہیں, فلاں اکبر فلاں اعظم. میں نے کہا سب کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو, ووٹوں سے تم نے بنا لی, ہم جو ووٹوں سے تم نے بڑے بڑے عہدے بانٹے ہیں, درود ان پہ آتا ہے یہ میرے 12 پیروں. اوئے ہوئے لانا, جڑا بندہ سمجھا یار, جڑا بندہ عبادت سمجھ کے بیٹھا ہے وہی بیٹھا ہے. جملے دو, کیا ساؤنڈ والے غور سے سننا. امام المتقین کہلوانا اسے جچتا ہے,
जिसके 2 बेटे जन्नत के सरदार हो, जिसका अली इब्न हुसैन जैसा ज़ैनुल आबिदीन बेटा इमाम हो, जिसका मोहम्मद इब्न अली जैसा बाकिर बेटा इमाम हो, इमामुल मुत्तकीन वो बन सकता है जिसका जाफर इब्न मोहम्मद जैसा सादिक बेटा इमाम हो। इमामुल मुत्तकीन कहलवाना उसे जचता है जिसका मूसा बिन जाफर जैसा कासिम बेटा इमाम हो। इमामुल मुत्तकीन फकत वो बन सकता है जिसका अली इब्न मूसा जैसा रिजा बेटा इमाम हो। इमामुल मुत्तकीन वही कहलवा सकता है जिसका मोहम्मद इब्न अली जैसा तकी बेटा इमाम हो। इमामुल मुत्तकीन उसे कहलवाना जचता है जिसका अली इब्न मोहम्मद जैसा नकी बेटा इमाम हो। इमामुल मुत्तकीन कहलवाना उसे जचता है जिसका हसन इब्न अली जैसा अस्करी बेटा इमाम हो। अब चुप न रहना, 73 मसरक की किताबों से गुनाहगार आंखों से मैंने पढ़ा। इमामुल मुत्तकीन वो बन सकता है जिसका पारवा लाल बिला का जब दुनिया में आएगा 73 मसरक में लिखा, चौथा आसमान छोड़ के ईसा नबी आके इसके पीछे नमाज पढ़ेगा। ईसा को मेरा महदी कहेगा तू नमाज पढ़ा, तू उलुल आज़म नबी है। कहते मैं उलुल आज़म बना हूँ लेकिन तेरे नाने के सदके अगर मैं मौजों वाला बना हूँ, तेरे नाने के सदके अगर मैं बड़ा ईसा बना हूँ, तेरे नाने के सदके अगर नाबीना को बीना करता हूँ, तेरे नाने के सदके अगर कायनात में मैं जाना जो ज़ख़ीरा करके आए हो वो बता सकता हूँ तो तेरे नाने के सदके, जो कुछ खा के आए हो वो बता सकता हूँ तेरे नाने के सदके। मैं कहता हूँ जो पीछे नमाज पढ़ेगा अल्लाह ने उसके इतने इख्तियार बनाए, जो पढ़ाएगा उसके कितने इख्तियार। दोनों हाथ बुलंद करके है दलील पाबंद रहे अली पर। मैं कहता हूं पूरा अली का कसीदा बन के आया है कुरान, और एक आयत का जो करे कुरान की आयत का इनकार वो तो बनता है काफिर। तो फिर इधर कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अगर कुरान को ना मानो तो काफिर, अगर कोई कुरान के बराबर हो उसे ना क्योंकि बंदे हमारे ऊपर फतवे लगाते काफिर 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 काफिर। doesn't matter for me, I explain it in detail, I am a researcher of all fiqh, not one fiqh। मैंने कहा गौर से सुनो, तुम्हारे काफिर काफिर कहने से बंदे काफिर नहीं बनते। काफिर वो बनते हैं जिनके इमाम काफिर हो। जब बंदा जाग रहा है वही बंदा बोल रहे यार, हर बंदा ना बोल, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कह दिया काफिर इमाम भी मैंने बनाए। आदम बनाया था, अल्लाह शैतान ना बनाता, इब्राहिम बनाया था, नमरूद ना बनाता। अच्छा मुझे ये बोलो, ऐसा बताओ अशरफुल मखलूकात बना के गुनाह की तरफ बंदा जा रहा हो, अल्लाह ने कभी पकड़ा है? जब नहीं पकड़ा तो फिर वो ये तो बता रहा है अशरफुल मखलूकात का दायरा इख्तियार मैंने इतना बनाया, अब सच्चों को पकड़ो झूठों पे यार ये तो बंदा जो है ना खुद कुरान पढ़ेगा ना पता चलेगा। अब आखिरी जुमला, घर में 12 इमामुल मुत्तकीन यहां जो सर उठाए, मुल्ला उमर अमीरुल मोमिनीन, उसामा अमीरुल मोमिनीन, जो भी जो ना थोड़ा सा इलेक्शन लड़ पड़े अमीरुल मोमिनीन, ये वक्त का अमीर है। लेकिन कायनात में वाहिद टोला है जिसके इमाम 12 लेकिन इमामुल मुत्तकीन 1। और यार उठाओ हाथ, जिनके इमाम 12 है वही हाथ उठाए। और हाथ ना बांधो, हाथ में खुलवाता हूँ, हाथ छुड़ा जाना बंधवाता नहीं। जो बंदा अभी तक बांध के बैठा है मुझे लगता है कहीं और तरीके से हाथ तेरे खुलवाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं सैयद हूँ, कायनात में परेशान होके नहीं। हमारे इमाम 12 लेकिन इधर ना उनका जाले कायनात में अब मुझे बताना पड़ेगा इमाम 12 उनमें इमामुल मुत्तकीन 1, इमाम हमारे 12 उनमें अमीरुल मोमिनीन 1, इमाम हमारे 12 उनमें मुर्तजा 1, इमाम हमारे 12 उनमें मुज्तबा 1, इमाम हमारे 12 उनमें सैयदुश शुहदा 1, इमाम हमारे 12 उनमें सैयदुस साजिदीन 1, इमाम हमारे 12 इनमें ज़ैनुल आबिदीन 1, इमाम हमारे 12 इनमें बाकिर 1, इमाम हमारे 12 इनमें सादिक 1, इमाम हमारे 12 इनमें काज़िम 1, इमाम हमारे 12 इनमें रिजा 1, इमाम हमारे 12 इनमें तकी 1, इमाम हमारे 12 इनमें
शकी एक, इमाम हमारे 12, इनमें अस्करी एक। अब अभी तक भी बंदे मेरे साथ नहीं चल सकते। इमाम हमारे 12, उनकी नमाज एक, इमाम हमारे 12, इनका रोजा एक, इमाम हमारे 12, इनकी अजान एक, इमाम हमारे 12, इनकी ज़कात एक, इमाम हमारे 12, इनका खुम्स एक, इमाम हमारे 12, इनका तवल्ला एक, इमाम हमारे 12, इनका तबर्रा एक, इमाम हमारे 12, इनका अमर बिन मारूफ एक, इमाम हमारे 12, इनमें नहीं अनिल मुनकर सब की एक, इमाम हमारे 12, अभी तक बंदे नहीं जागे, इमाम हमारे 12, इनका हसब एक, इमाम हमारे 12, इनका नसब एक, इमाम हमारे 12, इनकी नस्ल एक, इमाम हमारे 12, इनका खून एक, इमाम हमारे 12, इनका गोश्त एक, इमाम, ये मैं तर्जुमा हदीस का कर रहा हूँ, इमाम हमारे 12, इनकी हड्डियां एक, इमाम हमारे 12, इनके बाल एक, इमाम हमारे 12, इनका नूर एक, इमाम हमारे 12, आप चाहते लोगों से मेरी गुफ्तगू है यार, सोए से नहीं, इमाम हमारे 12, इनका जिस्म एक, इमाम हमारे 12, इनकी गुफ्तार एक, इमाम हमारे 12, इनका किरदार एक, इमाम हमारे बच्चों 12, लेकिन इनकी चाल एक, इमाम हमारे 12, इनकी ढाल एक, इमाम हमारे 12, इनकी गुफ्तार एक, काशिफ नकवी साहब, इमाम हमारे 12, इनका तरीका एक, इमाम हमारे 12, इनका रास्ता एक, उधर इमाम भी कई रास्ते भी कई। आदम ना रोता, हम ना रोते। सैयद से अहद वफा हो गया, अल्लाह ताला हंसते बसते घरों से आए हो, हंसते बसते घरों में पहुंचोगे, लेकिन मैं उनका मुसीबत भरा खुदा गवाह हमारे लिए, कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्ज़िन करबला। सब खुशियां भी होती हैं, लेकिन हमारे दिल में हर दिन आशूरा है और हर जमीन हमारे लिए करबला। खुदा गवाह, हम बच्चों को अगर सेहरा भी पहनाना हो ना, हम क्या करते हैं, मजलिस खबा, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हम आज भी हुसैन से हैं, कल भी हुसैन से, मुसीबत में भी हुसैन और हम खुशी में भी हुसैन का जिक्र करें। आदम ना रोता, बहुत बड़ा मैंने जुमला कह दिया, रोने पे इतराज होता है। अल्लाह जानता है, आदम ना रोता, हम ना रोते, क्योंकि जो हुक्म हुआ है वही मसाइब मैंने पढ़ना है। नूह ना रोता, हम ना रोते। मेरे भाई होमदार आ गए, अल्लाह जानता है। याकूब ना रोता, हम ना रोते। अयूब ना रोता, हम ना रोते। मालदार नबी था, लेकिन इम्तिहान जब शुरू हुए ना हाफिज साहब की बिला, अल्लाह जानता है हर मौके पे। होमदार भाई, अयूब नबी यही कहता था जुमला, मालिक मैं वैसे राजी हूँ जैसे तेरी पाक ज़ात राजी। 10 बेटे दावत में बैठे थे, छत गिरी, सारे दुनिया से रुखसत हो गए, बोलो सब, लेकिन जुमले अयूब नबी के सब्र वाले, मालिक मैं वैसे राजी हूँ जैसे तेरी पाक ज़ात राजी। अल्लाह जानता है इतना बड़ा रेवाड़, सबसे मालदार सब नबियों से कुरान का वाक़या है, सारे रेवड़ में बीमारियां आई, खत्म हो गया, लेकिन जुमले वही सैयदज़ादा, मालिक मैं वैसे राजी हूँ जैसे तेरी पाक ज़ात राजी है। अल्लाह जानता है बड़े बागात थे अयूब नबी के, मालिक मैं वैसे राजी, जैसे तूफान आया सब खत्म हो गए, लेकिन जुमले वही है। बीमार हो गए, मैंने काशिफ नकवी खुद पढ़ा है, अयूब नबी के उम्मतियों ने टाट में लपेट कर इसको बस्ती से बाहर रख दिया, क्योंकि इसके जिस्म में कीड़े पड़ चुके थे। एक रहमा खातून है, वफादार बीवी, जो दिन को बंदों के जनाब लोगों के घर बर्तन साफ करती, आकर अपने अयूब नबी को खिलाती थी, लेकिन जब बंदों को पता चला ये 2 नबियों के रिश्तेदार हैं, इन्होंने रोक दिया, ये हमारे घर काम न करे। लेकिन एक दिन मजबूर होकर चौक में आई, एक काफिले का गुजर हो रहा था, कहती है काफिले वालों मैं 2 नबियों की रिश्तेदार हूँ, कर सकते हो कुछ मेरी मदद। एक जवान ने बाहर आके कहा अगर तू 2 नबियों की रिश्तेदार है तो फिर पहले सर के बाल दिखा।
तड़प गई अयूब नबी की बीवी, कहती है ये मेरा मसला नहीं, पहले मुझे अपने हाकिम से इजाजत लेनी पड़ेगी। काशिफ नकवी हाकिम जिंदा था, जो हर मौके पे कहता था मैं मालिक वैसे राजी हूँ जैसे तेरी पाक जात राजी। अब जाके जब अयूब नबी की बीवी ने कहा, कहती है सरदार अब कहते हैं सर के बाल दिखा, हम तेरी इमदाद करेंगे। दिखाऊं सर के बाल? जो हर मौके पे कहता था मालिक मैं वैसे राजी हूँ जैसे तेरी पाक जात राजी। अब अयूब नबी की धाड़ निकल गई, कहते मालिक मेरी गैरत गवारा नहीं कर दी कि मेरी बीवी बाल दिखाए और लोग इमदाद करें। मैं कहता हूँ सादात की नगरी में हाथ बांध के कहता हूँ अयूब नबी तेरी बीवी को बालों दिखाने के लिए इन्होंने कहा है, दिखाए तो नहीं। कुर्बान जाऊं मौला सज्जाद के सबर पे, जिसने 36 शहरों में अपनी बेरिदा फूफियों और माओं को ये कहता सुना कैसा होगा, जो हर चौक में कहती थी या हिजाबा आयो हमारा पर्दा। अल्लाह अकबर। कई दिन बाजार सजते रहे। यार रोकर मैं ये कह सकूं क्योंकि मैंने जहाज के सफर भी किए हैं, और यार बड़े से बड़ा आदमी अगर छोटे छोटे बच्चे साथ जहाज में बिठाए बैठा हो, अल्लाह जानते हैं उसे पता भी होता है कहीं धक्का नहीं लगना, लेकिन अपने बच्चों को अपने साथ चिमटाए बैठा होता है क्योंकि जान से प्यारे होते हैं बच्चे। और यार धक्का नहीं लगना होता, जहाज का आरामदेह सफर, लेकिन उनका कैसा शाम का सफर होगा कि एक एक बीवी, और यार एक एक बीवी 6-6 बच्चों को साथ लेकर, और जब वो हाथ से पकड़ते थे और हाथ उनके खुलने लगते, कहते थे फूफी अम्मा मेरे हाथ खुलने लगे हैं। कहते हम कैसे रोक सकती है, हमारे हाथ खुद पसे गर्दन बंधे हुए हैं। जब पता चलता बच्चा गिर गया है तो माएं फूफियां क्या कहती, बच्चों अब अल्लाह के हवाले। क़यामत को मुलाकातें होगी, अल्लाह आपको सलामत रखे। जो यार माथे का सर का मातम कर रहे हैं, अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ 3 दिन यार अल्लाह करे आप जो है ना ये बात सुन लगे। हुसैन भाई जाना साहब की बुला के बहुत बड़े मसाइब के जुमले हैं, कहते हम तुम्हारे डर से पढ़ते हैं कि 3 दिन बाजार सजते रहे, बीबियां नबी की बेटियां चुप करके खड़ी रही और नाचने वाली बुलाई गई, उनका इंतजार करती रही। कहते 3 दिन नहीं 3 दिन से ज्यादा बाजार सजते रहे, बागी की बहनें आने वाली। अल्लाह अकबर। अब जो सिर्फ 2 जुमले सुनना, अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे, हाय जरूर कर देना। है अली की बेटियां तुम्हारी अपनी किस्मत, अल्लाह जानता है यार जाना। बहुत बड़े जुमले तारिक जमील देवबंदी ने नहीं भी पढ़ा, कहते जिनके 72 शहीद हो जाए उनकी बेटियों को यही सिला दिया जाता है। जब एक खेमे को आग लगाते बीबियों दूसरे खेमे, कहते जब दूसरे खेमे को आग लगती बीबियां तीसरे खेमे। यार मैंने अहले तशय्यो की ये मक्ता की किताबों से पढ़ा है, कहते इन जालिम मुसलमानों ने, मैं काफिर नहीं कहूंगा, इन जालिम मुसलमानों ने ऐसे आग लगाई जैसे पूरे जंगल को शिकारी आग लगाता है। लेकिन तीसरे खेमे में तारिक जमील ने पढ़ा, कहते पहुंच के बीबियां पीछा, मौला सज्जाद हम खेमों में चल जाएं या बाहर आए। मौला ने कहा खुदकुशी हराम है, तुम खेमों से बाहर आओ। तारिक जमील कहता है शायद बीबियों को तसल्ली होगी, कोई हमें अकबर का पुरसा देगा, कोई हमें कौसम का पुरसा देगा, लेकिन किसी यजीदी हाथ में तीर था, किसी के हाथ में नेजा। कहते हैं नबी जादियों की चादरें भी उतार ले, इनको बालों से पकड़ के घसीट ले, और मुसलमान ऐलान कर रहे थे लूटो तबर्रुका अलियो बतूल को कैदी बनो के ले चलो आले रसूल। अल्लाह अकबर। अगर एक मार्फत का और जुमला सुनना चाहते हैं, अल्लाह जानते हैं मौला सज्जाद आपके मौला इमाम सज्जाद से पूछा गया अकबर की जवानी रुलाती है।
اللہ اکبر. تمہیں قاسم کے ٹکڑے. مولا خاموش رہے. کہتے تمہیں اصغر کی معصومیت رلاتی ہے. اور یار رونے والوں, اب جانا مولا سجاد خون کے آنسو رونے والے خاموش. لیکن کچھ دیر کے بعد